एक एक वर्ड एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी। सो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस ऑफ 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट एज NO3 प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारे नॉन मेटल है। पहले के जो दो एलिमेंट है वो हमारे क्या है? Hi guys, welcome back to the chemistry series. This video is quite important for 2025 NEET exam. Guys, बहुत important वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में as you can see the thumbnail मैं पूरा NCERT करवा दूंगी P ब्लॉक का। Yes, पूरा P ब्लॉक आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में फ्रॉम NCERT। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है। सो प्लीज़ गेट रेडी। आप या तो अपनी PDF खोल लीजिए या अगर आपके पास NCERT बुक है उसे खोल लीजिए, और इफ़ बोथ ऑफ देम आर नॉट देयर आप प्लीज़ मेरे जो पॉइंट्स होंगे आप उसको नोट डाउन करते चली जाएगा। मैं पूरा P ब्लॉक चैप्टर इसी वीडियो में कवर करा दूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हमारे पास ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक है। सो लेट्स स्टार्ट। What will be the objective? So as we can see we have group 15, 16, 18. We'll be learning about dinitrogen, phosphorus, some of the important compounds, right? The preparation and the properties of the uses of dioxygen, ozone and simple oxides. We have allotropes, forms of sulfur, chemistry of the important compounds and the structure of oxoacids. Very, very important. Then the preparation and properties and use of chlorine and hydrochloric acid we have. Chemistry of interhalogen and the structure of oxoacids of halogen. Uses of noble gases and the importance of these elements in our daily life. That's all we are going to have in this video. So guys, get ready with me. Let's start with the first page of the NCERT. So बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, एक एक वर्ड NCERT का एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी। As we know, P block elements, they are placed in group 13 to group 18 of periodic table. Valence shell electronic configuration होती है NS2NP126 except helium जिसका 1s2 गिना जाता है। Properties of P block element like other are greatly influenced by the atomic size. So P block elements की जो properties है they are influenced by atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electron negativity. So basically जो हम property discuss करेंगे that will be about atomic size. We have ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electron negativity, right? As the absence of d orbital in second period and the presence of d and f in the heavier elements causes क्या होगा, अगर हमें पता है जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एब्सेंट होता है, तभी जो हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं दे शो एनॉर्मलस बिहेवियर, उनकी एनॉर्मलस बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो होगा अपने ग्रुप के एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, ऑक्सीजन अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टी दिखाता है एंड ऑल, right? Starting from the third period onward, we have a significant effect on the properties of element. Presence of all the three types of element, that is metal, metalloids and non-metal, bring the diversification in chemistry of this element. So P block एक ऐसा part है जिसमें metal, non-metal and metalloids सब present होते हैं हमारे पास. So having learned the chemistry of elements of group 13 and 14 of P block of periodic table in class 11th, हमने क्लास 11 में 13, 14 किया था और वो वैसे पार्ट एक्चुअली अब एलिमिनेटेड भी हो चुका है। सो हमारे लिए जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा P ब्लॉक के 15, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18। एंड मैं एक स्पेशल पॉइंट बोलूँ तो ग्रुप 15, 16 आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई एग्जाम्पल्स, कई क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। बहुत कम पोर्शन विल सी फ्रॉम दी 17 एंड 18। 15 एंड 16 इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Okay, so first we are going to have group 15 elements. Group 15 से पहले start करते हैं।
सो ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ. ओके, वी हैव नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the elements of group 15. बेसिकली एक और एलिमेंट होता है बट दैट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, राइट? ओके, सो एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक. वैसे भी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होने लगता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है. तभी बोला जाता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में ना जिसकी जो ज़्यादा पाया जाता है दैट इज़ मेटल्स. मेटल्स की टेंडेंसी, मेटल्स ज़्यादा है हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो नॉन मेटल बेसिकली द पी ब्लॉक साइड की तरफ है उसके भी जो लोअर एलिमेंट्स हैं ना वो सब मेटालिक इन नेचर है. ओके, so molecular nitrogen comprises of 78% by volume of atmosphere. अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट एज NO3 प्रेजेंट होता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट एंड एनिमल. फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स. फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारे नॉन मेटल है. पहले के जो दो एलिमेंट है वो हमारे क्या है? नॉन मेटल. आर्सेनिक एंड एंटीमोनी हमारे मेटलॉइड्स है और बिस्मथ हमारा मेटल है. Yes, so they have given some existence of phosphorus and nitrogen, not so important. Which are the main components of phosphorus rock? Phosphorus is an essential component of animal and plant matter. It's a essential constituent which is present in animal and plant matter. It is also present in bones as well as in the living cells. Phosphoproteins are found in milk and egg. Arsenic, antimony and bismuth are mainly present in sulfide material. Not so important. जो मैंने important mark करवा रही हूँ मैं उसे highlight करते चली जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको note down करते रहना, ठीक है? अपनी बुक खोल के आप मार्क कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ टेबल जिसमें हमारी सारी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन है, सारे एलिमेंट्स हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ की. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर है ही, 7, 15, 33, 51 एंड 83. देन द एटॉमिक मास. अगर आप इसके एटॉमिक मास देखोगे ना तो थोड़ा सा स्लाइट चेंज आता है. लाइक यू नो, इफ़ यू कैन सी बिस्मथ, उसका साइज एक्चुअली बढ़ चुका है, राइट? एंड थोड़ा मतलब यहाँ से यहाँ जाने में चेंज आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ, फिर यहाँ से एकदम से ज़्यादा ट्रांजिशन आया है. देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, डेफिनेटली अगर हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP3. इट इज़ NS2 NP3. तो आप सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो. 2S2 2P3, 3S2 3P3, 4S2 4P3, 5. Now we have to show the inclusion of d orbital. So 4D10, 5S2 5P3. I hope it's clear to everyone. I hope आप सबको दिख रहा है. Then we have 4F14, 5D10, 6S2 6P3. The outer electronic configuration is in the form of NS2 NP3, right? Then we have ionization enthalpy order. As you can see down the group, ionization की एनर्जी की वैल्यू कम क्यों हो रही है? बिकॉज साइज बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होने लगता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ईजिली. हेंस कम एनर्जी देनी पड़ती है हमें उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. सो वी हैव सी अ चेंज वेयर आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, राइट? देन वी हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है. देन वी हैव फॉस्फोरस और एक्चुअली हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है वो बहुत सिमिलर होती है, नियर बाई H2. व्हेन वी हैव आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ. कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, बॉइलिंग पॉइंट and the density. You can see the boiling point order also. It's keep on increasing as we go down the group.
जैसे वहाँ पे मेंशन भी किया गया है, लाइक यू नो वाइट फॉस्फोरस के लिए हमें मेंशन किया गया है। और जैसे अगर ये एफ लिखा हुआ है तो हमारी एफ की जो स्टेटमेंट है BCDE एंड एफ सब्लिमेशन टेम्परेचर है बेसिकली ये आर्सेनिक का। सो दे हैव मेंशन बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट द ट्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं बट उससे पहले हम समझ लेते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड, NS2 NP3, s orbital in this element is completely filled and p orbital is half filled। ये जो p orbital का half filled configuration है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी को काफ़ी अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। स्पेशली half filled and fully filled are extra stable, they have extra stability in them। so आप देख सकते हैं। then we have atomic and ionic radii, जो हमने एक ऑर्डर देख भी लिया था। covalent and ionic radii increases in size down the group, definitely shell बढ़ेंगे तो size भी बढ़ेगा। there is a considerable increase in the covalent radii from nitrogen to phosphorus, from arsenic to bismuth only a small increase। मतलब increase तो होता है size but एक gradual increase नहीं हो पाता है, जो हम देखेंगे कि अगर shell बढ़ रहे हैं तो size भी बढ़ना चाहिए। और इनका reason क्या है? due to, इनका बहुत सिंपल सा रीज़न होता है कि दिस इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड DNF ऑर्बिटल इन हेवियर एलिमेंट। सो ये जो DNF ऑर्बिटल होते हैं ना, ये जो DNF ऑर्बिटल होते हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होने लगता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ईजिली पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि समझ लो ये ऐसी शील्ड है जिसमें थोड़े बहुत होल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज उन होल से पास करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो साइज़ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बट डाउन द ग्रुप जाते जाते वी सी ऑल्सो इंक्रीज इन शेल। तो एक फैक्टर जो इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर जो डिक्रीज कर रहा है, बट क्या होता है दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम इतना ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं देख पाते हैं साइज में, इसलिए बोला जाता है कि इंक्रीज तो हो रहा है बट उतने चेंज इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना वी हैव सीन इन नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। ओके, राइट। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी as we have already discussed, decreases down the group due to gradual increase in atomic size। The best solution and the best reason for ionization energy because of extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of group 15 of element greater than group 14। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ group 15 और 14 को, so group 15 की ionization energy ज़्यादा है as compared to group 14। अब उसका रीज़न क्या है? डेफिनेटली द बेस्ट रीज़न इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड हमेशा से ही ज़्यादा होगी हमारी किसकी? 3 की 2 की पर्टिकुलर, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करी जाए। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, फटाफट से नोट्स बना रहे हैं। कम ऑन गाइज, वी हैव टू डू इट वेरी फास्ट। हमें बहुत जल्दी से इसको समझना है, सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है एंड आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स अ वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी value as we have seen decreases down the group with increase in atomic size, right? The difference is not that much pronounced. All the elements of group are polyatomic, yes। N2 P4 ये सब हमारे polyatomic की नेचर है। जैसे डाई नाइट्रोजन डायटोमिक की नेचर आ गई,
they are solid. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metal. Arsenic and antimony हम कर चुके हैं. Due to decrease in the ionization enthalpy and increase in size. The boiling point in general increases from top to bottom in group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. अब ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे. सो मेल्टिंग पॉइंट का जो है ना वो डिपेंड करता है कि उसका क्रिस्टल लैटिस कैसे बना हुआ है, वो किस फॉर्म में है, वो HCP है, CCP है. उन फैक्टर से भी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाला जाता है. एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी. जैसे फॉस्फोरस का है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस. सो नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ वी हैव इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of these elements are -3, +5 and +3. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group. क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं नीचे क्या है, मेटल. मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो -3 कैसे दिखा सकते हैं, तभी बोला गया है कि द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप due to increase in metallic character. In fact, the last member of the group, bismuth, hardly form any compound in -3 oxidation state. The stability of +5 oxidation state decreases around the group. The only well characterize bismuth compound is BI5. अच्छा, इसका रीज़न क्या है guys? बहुत important रीज़न है. Decrease down the group. The only character is the stability of +5 oxidation state decreases and the +3 oxidation state increases. The most important reason is inert pair effect. Inert pair effect. Should I use the yellow color? वो काफ़ी अच्छा लगेगा. Let's see. अच्छा, तो inert pair effect क्या कहता है? The inertness of the outermost electron to participate in a reaction. Why? Due to increase in Z effective charge. Basically क्या होता है, D and F poor shielding ग्रुप आने लगते हैं डाउन द ग्रुप जाते जाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज का भी हमने देखा था फैक्टर. तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने लगेगा, न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करेगा, उतना ही वो कम रिएक्शन मतलब रिएक्शन में जाने नहीं देगा या वो एटम को छोड़ना नहीं चाहेगा. सो the inertness of the outermost electron to participate in a reaction due to increase in Z effective as down the group D and F orbital has been introduced, which causes poor shielding effect. So that's called inert pair effect. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर ग्रुप 15 की N की वैल्यू 5 है मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो डाउन द ग्रुप N-2 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लग जाता है. ओके, so nitrogen exhibits +1, +2, +4 oxidation state, and also when it reacts with oxygen. Yellow color से देखो तो phosphorus also show +1, +4 oxidation state in some oxo acid, जैसे हमारे H3PO4, H3PO3 बनेंगे. Guys, yellow color अच्छा है, हाँ yellow color better है. Okay. In case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 tends to disproportionate. बेसिकली जो हमारे ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 का नंबर क्या हो गया हमारा, ऑड हो गया, राइट. तो जो भी हमारी इवन वाली होती है ना वो मिक्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाने लगती है. तो सो वी हैव इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 टेंड्स टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल HNO2. अब अगर हम NO2 का देखें इधर, तो यहाँ पे N का क्या है हमारे पास है, जैसे ये हो गया हमारा 1 + x - 4 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 3. सो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है अपना, किस में, +5 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे किस में है, +2 में, है ना. तो आप ये देख सकते हैं, नोट डाउन कीजिए. मूविंग ऑन. यस, so we have phosphorus. Nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +3 and -3. बेसिकली क्या रेंज रहता है इनका, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं. सो नाइट्रोजन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर है दैट इज
+5 से -3 इनकी रेंज है, तो जो भी इनके बीच में लाई करती है ना ऑक्सीडेंट स्टेट, वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, वो दूसरी वैल्यू में जाएगा, राइट? ओके, सो however, the +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to the disproportionation reaction. Maximum covalency of nitrogen is 4, since only 4, 1s and 3p orbital are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbital in the outermost shell which can be used for the bonding and hence expand their covalency. तभी जो हमारे नीचे वाले elements हैं वो किस तरह के बॉन्ड दिखा सकते हैं? दे कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी एंड फॉर्म कंपाउंड्स लाइक PF6-. एनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, एज आई हैव टॉक्ड, मैंने इसके बारे में शुरू में बोला भी था आप लोगों से कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, उनकी कुछ एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज होती है. दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर ग्रुप. तो हम एक बार देख लेते हैं वो कौन सी एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज है. सो we have nitrogen differ from the rest of the member due to nitrogen क्यों differ करता है? small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, non availability of d orbital. ठीक है, उसकी वजह से रिफर करता है. दे हैव यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड. सिर्फ सेकेंड एलिमेंट पीरियड एलिमेंट p-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, right? And small size ये हो गया. Heavier elements of this group do not form p-pi bond as their atomic orbitals are so large. They cannot diffuse and cannot have. So heavier elements do not form p-pi bonds as the atomic orbitals are large and diffuse. Cannot have effective overlapping. मैं बहुत पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क करवा रही हूँ जिससे वो एक लाइन बन जाए और आपको इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड. अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो हमारा N2 का, ये होता है हमारा N2 का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, राइट? कॉन्सिक्वेंटली बॉन्ड एंथैल्पीज इतना. ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, while bismuth form metallic bonds in the elemental state. However, the single NN bond is weaker than the single PP bond because of, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होती है, इसलिए बोला जाता है कि जो NN का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है NN का, दैट इज वीकर एज कम्पेयर टू सिंगल PP बॉन्ड. NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. गॉट इट? सब सही चल रहा है? चलो, मूविंग ऑन. एज अ रिजल्ट ऑफ द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन. कैटिनेशन की टेंडेंसी भी नाइट्रोजन में काफ़ी कमज़ोर होती है. वाई? अगेन वही, सिंगल बॉन्ड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वीकर है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ये हम पहले डिस्कस कर सकते. बिसाइड द रिस्ट्रिक्टेड इट्स कोवेलेंसी टू फॉर नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d-pi p-pi बॉन्ड एज दे हैव हेवियर एलिमेंट्स कैन फॉर्म. ठीक है, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म d-pi बॉन्ड. फॉस्फोरस and arsenic can form d-pi bond, and also with the transition elements like their compounds like P2CH5 whole thrice and arsenic C6H5 whole thrice. Reactivity towards hydrogen. So जब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वो EH3 टाइप के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, जैसे NH3, PH3, ASH3 एज यू कैन सी ऑल्सो. ठीक है, सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड शोन इन द टेबल. हाइड्राइड शो graduation in their property. The stability of hydrides decreases from NH3 to BiH3 which can be observed from the bond dissociation enthalpy. डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है. क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो जा रही है. स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लाइक Bi का स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इसलिए वो वीकर बॉन्ड्स है. बट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस. मतलब BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दी ग्रुप. NH3, PH3, SH3 में अगर हम बात करेंगे तो BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अमोनिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है और BiH3 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. इसको हमेशा याद रखना. बेसिसिटी का ऑर्डर भी इन्होंने मेंशन कर दिया, ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप
एज वी नो NH3 तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो क्या क्या पॉइंट्स मिले हमें कि जब हमारा नाइट्रोजन की फैमिली हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बनाती है हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले? पहला कि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, दूसरा हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तीसरी बेसिसिटी भी डिक्रीज करती है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार। स्टेबिलिटी हम बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप के लिए, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीजेस और बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर हाइड्राइड्स। ठीक है, एक बार देख लो। राइट, चलो। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सब प्रॉपर्टी हमें मेंशन की गई है। आप इसको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट तो अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही है। ठीक है, ऑर्डर देख रहे हैं तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आ रहा है? 195, 139 एंड एकदम से मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इट्स नॉट अ ग्रेजुअल इंक्रीज। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले NH3 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। देन वी हैव SbH3, देन वी हैव AsH3 और फिर हमारा PH3 है ना, और BiH3 की तो वैल्यू की बात ही नहीं करते हैं। देन अगेन बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा स्लाइट चेंज है अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इसकी वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट की, दैट इज़ BiH3, देन वी हैव SbH3, इसके बाद हमारे पास NH3 एंड देन वी हैव AsH3 और फिर हमारा आ जाता है PH3। तो PH3 तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के केस में ही सबसे लो वैल्यू दिखाता है। अगेन मेल्टिंग पॉइंट के लिए रीजन होता है क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर क्या है, एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो रीजन होता है बिकॉज ऑफ सम बॉन्डिंग। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। बेसिकली जो नाइट्रोजन फैमिली है दो तरह के ऑक्साइड की फॉर्म करती है, जैसे N2O3 एंड N2O5 मेजरली। The oxides in higher oxidation state of element is more acidic than the lower oxidation state। तो ये तो किसी का भी केस होता है कि ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? मेटल्स है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? बेसिक ऑक्साइड्स बनाने की होती है, राइट। नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी होती है। सो देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Oxides of the type of nitrogen and phosphorus are purely acidic। मतलब N2O3 की बात करें, P2O3 की बात करें, they are purely acidic। Arsenic and antimony amphoteric are those of bismuth predominantly basic। आर्सेनिक और एंटीमोनी एम्फोटेरिक है क्योंकि वो मेटलॉइड में आ जाता है, और बिस्मथ हमारा प्रीडोमिनेटली मतलब बेसिक कैरेक्टर, वाई मेटालिक कैरेक्टर की वजह से। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, बट मुझे फास्ट जाना पड़ेगा, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है। आपका पी ब्लॉक पूरा पी ब्लॉक आपका NCERT का कवर हो जाएगा। कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देखना, मेरे साथ रिवाइज करते चले जाना। ओके, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द टाइप ऑफ, बेसिकली जैसे हो गया हमारा NCl3 PCl5। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल। जैसे अगर हम बात करें तो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वेयर एज PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि N के पास नो D ऑर्बिटल, वेयर एज P हैज D ऑर्बिटल, ठीक है। Pentahalides are more covalent than trihalides. Trihalides of element except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen only NF3 is known to be stable. नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 stable अपने पास, और BiF3 are predominantly covalent in nature. Right? Reactivity towards metal, all these elements हमारे नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। All these elements react with metal to form their binary compound exhibiting -3 oxidation state. So अगर ये नॉन मेटल है तो they will have a tendency to accept electron, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और दैट इज -3।
So all these elements react with metal to form binary compound, exhibit -T oxidation state. You can see there are some compounds: calcium nitride, Ca3N2, Ca3P2, then we have Na3AS2, zinc antimonide. Not ये हमारे जो important वाले ना ये दो हैं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको देख लेंगे आप. So we have certain questions, जैसे यहाँ पे mention भी है, दो नाइट्रोजन exhibit +5 oxidation state doesn't form pentahalides. वही non-availability of d orbitals. pH3 has lower boiling point than NH3. Unlike NH3, pH3 molecule are not associated with hydrogen bonding in liquid state. That is why the boiling point. Again we got the reason है कि pH3 में हमारे पास क्या है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, whereas NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू pH3. ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कर लेना. वाई आर पेंटालाइड्स आर मोर कोवलेंट इन नेचर, वाई इज BiS3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हेटेरोस. जल्दी से नोट डाउन करो. मूविंग ऑन टू द डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन. नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं. इट इज प्रोड्यूस कमर्शियली by liquefaction और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. लिक्विड नाइट्रोजन डिस्टिल. बहुत रिएक्शन पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादातर रिएक्शन पे आती नहीं है. एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वा सोल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड. और एक ये रिएक्शन एक बार याद रख लेंगे. स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन. Impurities can be removed by passing the gas through. Sulfuric acid containing potassium dichromate can hence be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate. एक ही रिएक्शन बस, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं आती है. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. It has two stable isotope. दो stable isotope है हमारे पास, N14 and N15. It has very low solubility and low freezing and boiling point. It is rather inert at room temperature क्योंकि उसकी bonding क्या है, complete है. It is forming 3 bonds because of the high bond enthalpy. However, increasing rapidly with the rise in temperature at higher temperature directly combines with small metal form. जैसे हमने देखे हुए थे lithium nitride, magnesium nitride, ये compounds का formation हो सकता है. They are ionic nitrides and with non-metal covalent nitrides form करते हैं. Few typical reaction we have given. Li3N, भूलना मत, N3 minus form में है, N3 minus form में present है. इट कम्बाइंस विद हाइड्रोजन एट अबाउट 7. हाँ, ये हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन कभी कभी वो ज़रूर बोल देता है. ठीक है, तो एक बार देख लेंगे कैटलिस्ट कौन सा है हमारे पास. एंड डाई नाइट्रोजन कंबाइंड विद डाइऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. अब तो एक हमारा दूसरा कैटलिस्ट यूज़ होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट इट्स ओके. द यूज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन. ठीक है, नॉट द यूजेस आर इम्पोर्टेंट एज सच. एक बार ये कैल्शियम साइनामाइड के बारे में पढ़ लेना. Then we have ammonia. Ammonia is present in small quantity in air and soil where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter. So we can form ammonia. We can form ammonia from urea, right? Urea है हमारे पास. On small scale ammonia is obtained from molecules. No need, कोई ज़रूरत नहीं. On large scale ammonia is manufactured by again Haber's process. तो हमारे को पढ़ना ही पढ़ना है. According to Lee-Chatterjee principle, high pressure would be favor the formation of ammonia. Optimum condition for the production of ammonia at pressure this. So basically high pressure and high temperature लिख सकते हैं आप, उसको ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप बोल सकते हो Haber's process at high pressure and high temperature. ठीक है. Earlier iron was used as a catalyst with molybdenum as a promoter. अब हमारे पास जो catalyst use होते हैं वो K2O एंड Al2O3 है. पहले आयरन एंड मोलिब्डेनम यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट ये डायग्राम बना रखा है, नॉट राइट नाउ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीड पर्पस के लिए, बोर्ड के लिए पर्पस के लिए होता है. अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर. इट्स फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर देखेंगे सिर्फ. इन सॉलिड स्टेट एक स्ट्रक्चर, हाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ज़रूर मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्रायगोनल पिरामिडल. Information regarding the structure again. Ammonia molecule is trigonal pyramidal with nitrogen atom at the apex. It has 3 bond pair and 1 lone pair of electron as shown in the structure. Ammonia is highly soluble in water. Its aqueous solution is weakly basic. इसका जो aqueous solution है
वो वीकली बेसिक in nature होता है, and formation of OH minus ion takes place. Ammonium salts, it forms ammonium salt with acid like NH4Cl, NH4 whole twice SO4, weakly basic reactions. बहुत not, I don't mind leaving this part. Presence of lone pair of electron on the nitrogen atom of the ammonia molecule makes it Lewis space. हाँ, स्ट्रक्चर से जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो हम भूलेंगे नहीं. Lewis space. It donates the electron pair and form linkage with metal ion, and the formation of such complex compound forms finds application in reduction of metal ion such as copper and A. जैसे कॉपर के साथ अमोनिया डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिल्वर के साथ वाइट पीपीटी फॉर्म करता है, और अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3 हो तो वो हमारा कलरलेस कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ लेना. Then we have again the uses. It is used to produce various nitrogenous fertilizers. काफ़ी सारे fertilizer बनाने में help करता है. Ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate. Nitrogen form number. अब oxides की बात करते हैं. Nitrogen form number of oxides and different oxidation state. The names and formula, preparation and physical property of these oxides हमारी given table है. Next जो table आने वाली है guys, very very important. पहले ही बता रही हूँ, बहुत important है. देख लेते हैं उसे एक बार. हाँ, so dinitrogen N2O, nitrogen 1 oxide plus 1 oxidation state. रिएक्शन छोड़ सकते हैं. प्रॉपर्टी कलरलेस गैस है. न्यूट्रल हाँ, ये जो पॉइंट्स है ना, न्यूट्रल एसिडिक, लिक्विड एसिडिक एंड एसिडिक, ये मत छोड़ना. ये वो बेसिकली कभी कभी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक इन नेचर. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड +3, +4, +4 एंड +5. इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका नेचर, कलर और बेसिकली कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, वो सब केमिकल नेचर एज वेल एज फिजिकल नेचर, ये इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं. कभी कभी वो पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे NO पे, टोटल क्या है. जैसे NO तो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी है, राइट. देन अगेन कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन N2O3. NO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, बेंड स्ट्रक्चर है. N2O4 में हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स है, कितने लोन पेयर टोटल है. N2O5 में डू वी हैव एनी ऑक्सी लिंकेज, यस वी हैव एन ऑक्सी लिंकेज. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. मतलब मैं कैसे मार्क करूँ, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल भी मत छोड़ना स्ट्रक्चर को. एंगुलर, प्लेनर, लीनियर, प्लेनर कैसे स्ट्रक्चर है. नाइट्रिक एसिड, लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रिक एसिड नाउ. Nitric acid, nitrogen form oxo acids such as H2N2O2, HN2, nitrous acid है, HNO3 nitric acid है. Among them HNO3 is the most important one. In lab we can prepare HNO3 with the help of NaNO3 and H2SO4. class retort कर सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन को बिल्कुल मत देखो. नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कंबाइंड विद ऑक्सीजन, नॉट इम्पॉर्टेंट. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार. NO dust formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation. रिएक्शन पूछ सकता है वो HNO3 की, काफ़ी है उसमें इंपॉर्टेंट. देन वी हैव इट स्ट्रक्चर तो मैं किसी का भी जो भी स्ट्रक्चर दिखे ना उसको तो करके ही जाना है. स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर को हम नहीं छोड़ सकते. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड. Laboratory grade nitric acid contains 68% of HNO3 and by the specific gravity, मतलब उसकी जो density है that is 1.5. HNO3 in aqueous solution, उसका property बताए. nitric acid behave as a strong acid giving hydronium and nitrate ion. Concentrated nitric acid is strong oxidizing agent, काफ़ी strong oxidizing agent है. attacks most metal except noble metals such as gold, platinum. Then we have the preparation, हाँ, reaction of copper with dilute HNO3 and reaction of copper with concentrated HNO3. एक में कॉपर हमारा +2, हाँ दोनों में कॉपर +2 है.
एक में हमारी कौन सी गैस है, ये तो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ये हमारी क्या हो गई, NO गैस, इसको मत भूलना, ठीक है। एक में हमारी NO गैस का फॉर्मेशन होता है, एक में हमारा NO2 गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक में नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये गैसेस फॉर्म होती है। अब ऐसे याद रखो कि कॉपर जब डाइल्यूट HNO2 के साथ रिएक्ट, HNO3 के साथ रिएक्ट करे NO गैस बनाएगा। कॉपर जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करे, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो NO2 के साथ NO2 फॉर्म करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी अगेन वही अपना N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सम मेटल डू नॉट डिजॉल्व इन concentrated नाइट्रिक एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द surface. Concentrated HNO3 also oxidizes non-metals and their compounds. Iodine is oxidized to iodic acid, carbon to carbon monoxide, sulfur to H2SO4 and phosphorus to phosphoric acid. इसकी रिएक्शन भी गिवन है, हाँ, कि अगर हम ऑक्सीडाइज हो जाता है बेसिकली, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट हैज़ अ पावर टू गेट ऑक्सीडाइज ईजिली। ब्राउन रिंग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकता है। इट्स अ फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ Fe टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या करता है, नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। Fe एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दिस इज द ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर याद रखना, मतलब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला याद रखना। व्हाट इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज FeH2O5NO+2. It is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate FeSO4 to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding the concentration from the side of the tube. बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग ब्राउन रिंग टेस्ट है। एक रिंग का बनती है ब्राउन रिंग की, एंड वो ब्राउन रिंग किसकी वजह से बनती है, इट फॉर्म बिटवीन द सॉल्यूशन and sulfuric acid layer indicating the presence of nitrate ion in the solution. So basically brown ring test का use क्यों है, it is used to indicate the nitrate ion। कैसे हम इसको बनाते हैं, ये यूजली हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट को डालते हैं नाइट्रेट आयन के सॉल्यूशन में और साइड से थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं, उसमें क्या होता है, एक रिंग बन जाएगी। वो रिंग का फॉर्मूला है FeH2O5NO2+। ये मत भूलना, मेजर यूजेस तुम पढ़ लोगे। हाँ, एक अदर मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, etching of metals and the rocket fuel. Next we have phosphorus allotropes. So we have 3 phosphorus allotropes, white, red and black. It is found in many allotropes. The important ones are being white, red and black. It is a translucent white waxy solid, poisonous, insoluble in water. तो अगर हम white phosphorus की बात करें तो इट्स अ वाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लोज इन डार्क। ये जो है जो चमकता है, तब इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। बस, इससे ज़्यादा नहीं, स्ट्रक्चर को ज़रूरत नहीं है। वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देख लो एक बार। हाँ, अगेन P4 मॉलिक्यूल, लेस स्टेबल, इट्स लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, राइट। एंगुलर फॉर्म है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल, वो हम स्ट्रक्चर से देख रहे हैं। इट इज़ बेसिकली जो रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस है ना, वो हमें वाइट से ही मिलता है। बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन इट इनर्ट एटमॉस्फेयर, व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। मतलब हम ब्लैक को वाइट से भी बना सकते हैं और रेड से भी। व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ फेज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस obtained, इट possesses नो नॉट इम्पॉर्टेंट ऑर्डरलेस नॉन पॉइजन। हाँ, रेड फॉस्फोरस ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन दी वाइट, इट डज नॉट ग्लो इन दी डार्क। सो वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में अगर हम कंपेयर करें तो जो वाइट फॉस्फोरस है दैट इज पॉइजनस, रेड इज नॉन पॉइजनस, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, दैट ग्लोज इन डार्क, दैट डज नॉट ग्लो इन डार्क, that is more reactive, this is less reactive. So red phosphorus, it's a polymeric consisting of a chain of P4 molecule. Black phosphorus has two forms, alpha black and beta black. Alpha black is formed when red phosphorus is heated in sealed 803 Kelvin, and beta black phosphorus is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin. वही मैंने बोला था कि वाइट फॉस्फोरस से हमारा जो बनता है वो बीटा ब्लैक बनता है, रेड फॉस्फोरस से हमारा अल्फा ब्लैक बनता है, ठीक है, ये याद रखना। ब्लैक फॉस्फोरस हैज़ 2 पार्ट, बीटा ब्लैक एंड अल्फा ब्लैक। रेड फॉस्फोरस
forms alpha black, white phosphorus form beta black. Phosphine के बारे में बताया है. Phosphine is prepared PH3 by calcium hydroxide. रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये याद रखना कि कौन सी गैस रिलीज आउट हो रही है, दैट इज PH3 गैस. ठीक है. सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, when pure it's non-inflammable, becomes inflammable, not important. Properties colorless है. Rotten fish smell, it is a colorless rotten fish smell and highly poisonous. It is slightly soluble in water, soluble of decomposing in presence of light, giving red phosphorus and H2 when absorption not important. Phosphine, yes, phosphine is weakly basic and like ammonia gives phosphonium compound with acids. Okay. Then we have our questions. आप प्लीज़ क्वेश्चंस को पढ़ लेना. फॉस्फोरस हेलाइड्स बेसिकली हमारे अगर जैसे PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3, तो फॉस्फोरस हेलाइड्स PCl3 हो गया हमारा. ठीक है. PCl3 के बारे में बता रखा है. इसकी रिएक्शन तो नहीं है इम्पॉर्टेंट. हाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं. जैसे PCl3 का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ अ पिरामिडल शेप एज शोन इन विच फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज. राइट. PCl3 ये इंपॉर्टेंट है. इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. तो PCl3 को हाइड्रोलाइज किया जाता है, इट फॉर्म H3PO3 एंड HCl. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो H3PO4 का फॉर्मेशन करता है. सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस, नॉट इंपॉर्टेंट. PCl5 इज येलोइश वाइट पाउडर एंड इन द मॉइस्चर इट हाइड्रेट्स टू POCl3 फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड. वही जो मैंने बोला था, PCl3 H3PO3 बनाता है और PCl5 H3PO4 बनाता है. फाइनली इट गिव अस ये दो रिएक्शन. ठीक है. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. When heated it's supplied in decomposition on stronger heating. PCl5 को डिकम्पोज करोगे तो PCl3 और Cl2 ही बनाएगा. ये तो हम कितनी कॉमन रिएक्शन पढ़ते ही आ रहे हैं. इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड. PCl5 का स्ट्रक्चर दे रखा है. हाँ ये देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट. इन गैसेस एंड लिक्विड फेस इट हैज़ अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन. द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये जो हमारे बॉन्ड है ये वाले, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं. This is due to the fact that the axial bonds pairs suffer more repulsion as compared to the equatorial. Solid state में जो हमारा PCl5 है ना, it exists in a ionic solid form that is PCl4 positive and PCl6 negative, in which the cation is tetrahedral and the anion is octahedral. ये very very important. ये part और basically इसकी decomposition. Oxo acids of phosphorus. Phosphorus form number of oxo acids H3PO3, H3PO4. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सो एसिड्स हम देख लेते हैं. टेबल होगा हमारे पास. अगेन हाइड्रोफॉस्फोरस H3PO2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस. ये नाम याद ना हो बट स्ट्रक्चर्स में कितने कितने बॉन्ड्स है वो ज़रूर याद रख लेना. कि मतलब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं H3PO4 लेते तो 3 POH बॉन्ड है और एक P का डबल बॉन्ड है. हमेशा एक चीज़ याद रखना कि फॉस्फोरस हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक 1 पाई बॉन्ड. फॉस्फोरस हमेशा एक पाई बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, उसके पास कैपेबिलिटी है. तो प्रिपरेशन नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ प्लीज़ बॉन्ड और प्लस ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. ये पार्ट पूरा. सो दे हैव गिवन द स्ट्रक्चर ऑल्सो. आप स्ट्रक्चर को तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी छोड़ना है. स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है. स्ट्रक्चर बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो मर्जी करो, बट इसको करो, डेफिनेटली करो. बहुत इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, राइट. इन ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस इज टेट्रली सराउंडेड बाय अदर एटम. ये सब स्ट्रक्चर पढ़ लिए होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है. यस, नाउ वी हैव ग्रुप 16. ग्रुप 16 से स्टार्ट करते हैं.